Good morning. I am Rajendra Tal from Government Polytechnic Sirsa, lecturer in mechanical engineering. Today I will discuss about jig and fixtures, that is in the workshop technology of 5th semester mechanical engineering. The contents of today's topic are jig and fixture, definition of jig and fixture, jig versus fixture, principle of location, locating devices, clamping devices, type of jig, fixture and fixture for milling, advantages of jigs and fixtures. First one, jig. It may be defined as a device which hold and position the workpiece and locates or guide the cutting tool relative to the workpiece and usually not fixed to the machine table. What basically jigs and fixture are? Jigs and fixtures are kind of devices which are used to hold the workpiece. Both the devices are used to hold the workpiece, and in jig we have a specific feature ki, as well as it hold the workpiece and it will also guide the tool which has to work on the workpiece, and here it is written that it is usually not fixed to the machine table. Jig is generally not fixed on the machine table. Then fixture. Fixture may be defined as a work holding device which hold and position the workpiece but does not locate or guide the cutting tool. A fixture is bolted or clamped on the machine table. Again the same, the fixture is a device which is used to hold and locate the workpiece, and fixture is bolted on the machine table and then workpiece is mounted on the fixture. Now there are some comparisons between jig and fixture. Number one, jig hold the workpiece and guide the cutting tool. Jig जो होगा it will hold the workpiece as well as guide the cutting tool. The fixture जो होगा, fixture will only hold the position, hold and position the workpiece but it not guide the cutting tool. Jig is lighter in construction and fixture is heavier in construction. It is not fixed on the machine table. Jig is generally not fixed on the machine table. Fixture is generally fixed on the machine table. Jig is used for drilling, reaming, tapping, counter boring operations, while fixture is generally used for milling, grinding, shaping, turning, planing and welding operations. Now elements of jig and fixture. Following are the elements of jig and fixture. One is locating element, then clamping element, a rigid body, tool guiding element and element for positioning or fastening of jig and fixture on the machine table. तो these are the detailed elements कि एक लोकेटिंग डिवाइस होगी जिग और फिक्चर में, देन एक क्लैंपिंग डिवाइसेस होगी, एक उसकी रिजिड बॉडी होगी, देन अगर हम जिग यूज़ कर रहे हैं तो टूल गाइडिंग मैकेनिज्म होगा, उसमें टूल गाइडिंग एलिमेंट होगा, और लास्टली कि उनको पोजीशन करने के लिए जिग और फिक्चर की पोजीशनिंग के लिए या उनको मशीन टेबल पे फिक्स करने के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट होगा, फास्टनर्स या कुछ अरेंजमेंट होगा. Then principles of jig and fixture design. These are the points upon which design of fixture or a jig depends. So these are the first one, rigidity. Rigidity means कि the jig और fixture should be rigid, क्योंकि अगर jig और fixture rigid नहीं होगा तो वर्क पीस जो हम उसके ऊपर होल्ड कर रहे हैं that will also not rigid. तो फर्स्ट वन इज़ दी रिजिडिटी कि फिक्चर जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं या जिग हम जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं वो दैट शुड बी मतलब कि दैट शुड बी डिज़ाइन सच दैट कि इट विल बी ए रिजिड बॉडी. देन लोकेशन, जो भी हमारा पार्ट है या जो भी वर्क पीस है, जो भी कंपोनेंट है, इट शुड बी ईजिली लोकेटेड ऑन दी वर्क पीस. फर्स्ट इज़ द लोकेशन एंड सेकेंड इज़ द क्लैंपिंग. लोकेशन मीन्स कि टू पुट द वर्क पीस, कि उसको एक बेस प्रोवाइड करना. कोई भी वर्क पीस है उसको हम एक बेस प्रोवाइड करेंगे, उसको लोकेट करेंगे, उसकी एक फिक्स यानी कि पोजीशनिंग उसकी हम करेंगे. तो फर्स्ट वन लोकेशन मीन्स की पोजीशनिंग उसमें प्रॉपर होनी चाहिए. देन क्लैंपिंग, आफ्टर पोजीशनिंग वी विल क्लैंप दैट वर्क पीस, यानी कि उसको सिक्योर करेंगे अगेंस्ट कटिंग फोर्सेस एंड अगेंस्ट टूल, या मतलब कि जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है तो टूल के अगेंस्ट हम जो है उसको फिक्स करेंगे या क्लैंप करेंगे. देन लोडिंग. लोडिंग मीन्स कि हाउ टू लोड द वर्क पीस ऑन दी जिग और फिक्चर. तो लोडिंग जो मैकेनिज्म है दैट शुड बी इजी, कि कोई भी हम वर्क पीस जो लोड कर रहे हैं दैट शुड बी लेस टाइम कंज्यूमिंग और दैट शुड बी इजी ऑपरेशन. देन इजेक्टिंग, आफ्टर लोडिंग, आफ्टर लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग, जब हमारा काम फिनिश हो जाएगा, जब हमारा वर्क पीस जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमने उसको इजेक्ट करना है.
यानी कि वी हैव टू रिमूव दैट वर्क पीस फ्रॉम द मशीन टेबल और फ्रॉम द जिग और फिक्चर। तो इजेक्शन का जो मैकेनिज्म है, जो इजेक्टिंग मैकेनिज्म है, दैट शुड बी क्विक एंड फास्ट। देन डिज़ाइन फॉर सेफ्टी, कोई भी जिग एंड पिक्चर हम बनाएंगे तो इट शुड बी सेफ, यानी कि इट शुड नॉट हार्म द वर्कर, इट शुड नॉट हार्म द टूल और इट शुड नॉट हार्म द वर्क पीस। तो किसी को भी कोई भी इससे मतलब कि परेशानी नहीं होनी चाहिए या कोई भी मतलब ये किसी को डैमेज नहीं करना चाहिए। देन कूलेंट पासेस, जो भी जिग एंड पिक्चर हम डिज़ाइन करेंगे तो देयर शुड बी प्रोविज़न फॉर पासेस ऑफ द कूलेंट इफ़ रिक्वायर्ड, क्योंकि कई ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे हीट की प्रोडक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हमें कूलेंट के लिए, कूलेंट के पासेस के लिए, यानी कि उसका एक पैसेज बनाने का एक प्रोविज़न हमें करना पड़ेगा। देन लास्ट वन इज़ द स्वार्फ क्लियरेंस। स्वार्फ क्लियरेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, कि कोई भी जिग एंड फिक्चर अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो जब हम वर्किंग करेंगे तो स्वार्फ प्रोड्यूस होगा। स्वार्फ मीन्स चिप्स या बर्स जो प्रोड्यूस होंगे, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर क्लियरेंस ऑफ दैट स्वार्फ और दैट चिप्स, क्योंकि अगर चिप्स अगर इकट्ठे होते गए तो वो वर्क पीस को डैमेज कर देंगे और प्रोसेसिंग को डिस्टर्ब करेंगे। तो देयर शुड बी ए स्पेशल प्रोविज़न और यू कैन से कि स्पेसिफिक प्रोविज़न फॉर द रिमूवल ऑफ द स्वार्फ। देन now we will discuss these things in detail. First one is the location. The process of positioning the workpiece relative to the work holder and the work holder relative to the cutting tool is called locating। यानी कि लोकेशन में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो भी वर्क पीस होगा तो हम उस वर्क पीस को एक पोजीशन देंगे, उसको एक जगह पे सेट करेंगे अगेंस्ट द वर्क होल्डर और अगेंस्ट द कटिंग टूल। तो दिस इज़ नोन एज लोकेशन। नाउ मैकेनिक्स ऑफ लोकेटिंग, कि लोकेशन को हम कैसे करते हैं। A workpiece free in space can move in an infinite number of directions. The motion can be broken down into 12 direction movements or 12 degree of freedoms. All 12 degree of freedom must be restricted to ensure proper referencing of a workpiece. सबसे पहले क्या है कि कोई भी अगर वर्क पीस है या कोई भी आर्टिकल है, अगर हम उसको स्पेस में देखते हैं तो इट कैन मूव इनटू नंबर ऑफ डायरेक्शंस, बट वी हैव broken these direction into 12 numbers, that is 12 degree of freedom. degree of freedom means कि किस डायरेक्शन में जो है वर्क पीस हमारा मूव कर सकता है। तो वी हैव 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6 आर दी रेक्टिलिनियर एंड 6 आर दी रोटेशनल। कोई भी आर्टिकल होगा वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, देन वाई डायरेक्शन में और देन जेड डायरेक्शन में। तो 3 और 3 6 हो गई, यानी कि एक्स में लेफ्ट साइड और एक्स में राइट साइड, वाई में अप एंड डाउन और जेड में टू एंड फ्रो। तो 6 डायरेक्शंस हो गई। देन एक्स डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और क्लॉकवाइज मूव करेगा। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंड जेड डायरेक्शन में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल वी कैन हैव 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और प्रॉपर लोकेशन के लिए जो है वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट ऑल दीज डिग्री ऑफ फ्रीडम और सम ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। देन these are the 12 degree of freedom as shown in figure. This is x direction, negative x and positive x, यानी कि left and right x, then y left and right y and then up and down z। तो ये तो 6 हमारी रेक्टिलिनियर हो गई। देन 6 जो हमारी x डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल हो गई, y में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल हो गई और z में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल होगी। तो दीज आर दी 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स एंड वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट सम ऑफ दीज डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ 3-2-1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। 3-2-1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन में क्या है कि वी विल यूज 3 + 2 + 1, यानी कि 6 नंबर ऑफ पिंस। वी विल यूज 6 नंबर ऑफ पिंस टू restrict the degree of freedoms. In this method, 6 individual locators reference and restrict the workpiece. Together, these 6 locators restrict a total 9 degree of freedom. With the help of 6 pins, we can restrict the 9 degree of freedoms. The 3 locators or spots are placed under the workpiece. तीन जो पिन्स होंगी या 3 जो लोकेटर होंगे वो नीचे वर्कपीस के नीचे लगेंगे। The next 2 locators are normally placed on the secondary locating surface and the final locator is placed at the end of the part. Again we can it can be clear from the figure
देखो फर्स्ट दीज आर दी 3 पिंस 1 2 एंड 3, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द फिगर। तो हम यहाँ से फ्रंट व्यू में देख सकते हैं कि ये 3 जो लोकेटर होंगे, फर्स्ट 3 लोकेटर जो है वो बेस पे होंगे। जब हम इनको बेस पे लगाएंगे तो इट विल रिस्ट्रिक्ट द रोटरी मूवमेंट एंड डाउन मूवमेंट। देन जो बाकी 2 लोकेटर हो गए ये इस साइड फेस पे, देखिए यहाँ पे ये साइड व्यू टॉप व्यू में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये दीज 2 लोकेटर्स आर दी, और साइड में देखेंगे तो ये बॉटम वाले 3 हो गए, देन ये साइड वाले 2 हो गए, तो 5 लोकेटर्स हो गए। और देन लास्ट 6 लोकेटर इज हेयर, ये 3 देखिए नीचे हो गए, 2 साइड में और एक अगेन सेकेंड साइड में। तो दीज आर दी 6 पिन लोकेटर प्रिंसिपल। अब आप देख सकते हो कि इन 6 पिन लोकेशन में 6 की 6 जो रोटेशनल मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और 3 रेक्टिलिनियर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। इसमें जो 3 मूवमेंट्स बचेंगी वो एक तो ये पीस इस तरफ जा सकता है, राइट डायरेक्शन में जा सकता है, एक ये आगे की तरफ आ सकता है और एक ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये 3 इसमें जो है रेक्टिलिनियर मोशन बचेंगे और 6 मोशन इसके हम 9 मोशन जो हम इसके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नाउ फॉर्म्स ऑफ लोकेशन, कि किस किस तरह से हम लोकेशन कर सकते हैं। वी हैव 3 फॉर्म ऑफ लोकेशन, प्लेन, कंसेंट्रिक एंड रेडियल लोकेटर। प्लेन लोकेशन, देन कंसेंट्रिक लोकेशन एंड देन रेडियल लोकेशन। नाउ प्लेन लोकेटिंग डिवाइसेस लोकेट ए पार्ट बाय इट्स एक्सटर्नल सरफेस। कोई भी प्लेन लोकेटिंग डिवाइस जो होगी वो उसके एक्सटर्नल सरफेस से लोकेशन करेगी, यानी कि जो डिवाइस का एक्सटर्नल सरफेस होगा दैट इज यूज्ड फॉर लोकेशन। कंसेंट्रिक लोकेटर्स लोकेट ए वर्कपीस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। कंसेंट्रिक में क्या हुआ कि हम सेंटर के हिसाब से एक एक्सिस होगी हमारी, तो अलोंग दैट एक्सिस वी कैन लोकेट सम आइटम। देन रेडियल लोकेटर रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ ए वर्कपीस अराउंड ए कंसेंट्रिक लोकेटर। जो रेडियल लोकेटर्स हैं हमारे, तो रेडियल लोकेटर में हम वी विल रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ ए वर्क पीस अराउंड ए कंसेंट्रिक लोकेटर, यानी कि वो उसमें भी एक्सिस का ही प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे। देन दीज आर द टाइप ऑफ लोकेटर्स वी कैन सी फ्रॉम द फिगर। देखिए दिस इज़ द प्लेन लोकेटर, ये अपने सरफेस से जो है इसको लोकेट कर रहा है, तो दिस इज़ द प्लेन लोकेटर। देन ये कंसेंट्रिक लोकेटर अलोंग द एक्सिस हम इसको लोकेट कर रहे हैं, कंसेंट्रिक लोकेटर। और देन दिस थर्ड वन इज द रेडियल लोकेटर। नाउ अगेन दीज आर द टाइप्स ऑफ लोकेटर्स। फर्स्ट वन इज द सॉलिड लोकेटर। इनमें देखिए वी हैव सॉलिड पिंस एंड वी कैन यूज दिस पिंस फॉर लोकेटिंग द वर्क पीसेस। इनके पिंस के ऊपर जो है वी कैन पुट सम थिंग ऑन द मटेरियल, तो वो एक प्लेसमेंट जो है हम कर सकते हैं इसे। देन एडजस्टेबल लोकेटर। एडजस्टेबल लोकेटर में देखिए यहाँ पे दिस पिन जो है, ये जो पिन है इट कैन बी एडजस्टेबल, तो विद द हेल्प ऑफ दिस नट वी कैन एडजस्ट दिस पिन अप एंड डाउन सो दैट वी कैन हैव मतलब कि वी कैन हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन दी पोजिशनिंग। यानी कि अगर हमारे पास वर्क पीस का साइज़ कम या ज़्यादा है तो हम इस पिन को एडजस्ट करके, इस नट एंड इन दोनों नट्स को हम एडजस्ट करके वी कैन एडजस्ट दी साइज ऑफ द मटेरियल और साइज ऑफ द वर्क पीस। देन इक्विलाइजिंग लोकेटर। इक्विलाइजिंग लोकेटर में क्या है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, और दोनों पॉइंट जो है इक्वल फोर्स डालेंगे। यानी कि जैसे एक फोर्क होती है तो फोर्क टाइप से जो है होगा, हम जो है ना दोनों पॉइंट जो है किसी भी वर्क फोर्स को इक्वली जो है फोर्स डालेंगे। Then principle of clamping devices. After locating we have to do the clamping. What is clamping? The clamping forces should hold the workpiece in its located position. So सबसे पहले हम वर्कपीस को लोकेट करेंगे, उसकी एक पोजिशनिंग देंगे, उसकी पोजिशनिंग के बाद विद द हेल्प ऑफ सम क्लैम्प हम उसको सिक्योर करेंगे अगेंस्ट द कटिंग फोर्सेस एंड अगेंस्ट द टूल। तो शुड नॉट काज एनी पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट और एक्सेसिव डिस्टोर्शन अंडर द एक्शन ऑफ द क्लैम्पिंग फोर्सेस। क्लैम्पिंग फोर्सेस जो है इट शुड नॉट बी वेरी हाई एंड और इट शुड नॉट बी वेरी लो, यानी कि ऐसा भी नहीं हो कि ये वर्कपीस को ढंग से होल्ड ना कर पाए और ऐसा भी नहीं हो कि ये जो है ना वर्कपीस को डिस्टोर्ट कर दे या उसको कोई तोड़ मरोड़ दे। द क्लैम्पिंग फोर्सेज शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सपोर्टिंग एंड लोकेटिंग एलिमेंट। जो क्लैम्पिंग फोर्सेज है वो हमेशा
यानी कि उनका जो रिएक्शन है वो हमेशा लोकेटिंग एलिमेंट की तरफ होना चाहिए या सपोर्ट की तरफ होना चाहिए। हम उसको सपोर्ट की तरफ जो है ना क्लैंपिंग फोर्स लगाना चाहिए। द फोर्स शुड बी ट्रांसमिटेड टू द रिजिड सेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रेम ऑफ द फिक्चर, यानी कि जो ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स है, जो हम लोड ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इट शुड बी ट्रांसमिट टू डू रिजिड सेक्शंस, यानी कि जो बेस होता है या जो बॉडी होता है जनरली बॉडी में ट्रांसमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी वीक पार्ट में हम लोड ट्रांसमिट करें तो मतलब कि वहाँ पे जो है दैट विल मतलब कि देयर में भी चांसेस ऑफ द फेलियर एट दैट प्लेस। Then type of clamp, we have number of kind of clamps. Some of these are screw clamp, flat clamp, pivoted clamp, equalizing clamp, latch clamp, double acting clamp, wedge clamp and cam clamp. We will discuss these clamp. First one is screw clamp. The screw clamp is used to grip the work on its edges. This type of clamping arrangement helps to machine top surface of the workpiece without any difficulty. ये देखिए here दिस इज द स्क्रू क्लैम्प, और स्क्रू क्लैम्प में क्या होगा कि एक सिंपल एक स्क्रू लगा हुआ और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं बॉडी में, एंड देन वी कैन लोकेट द वर्क पीस ऑन द स्क्रू क्लैम्प, टॉप ऑफ द स्क्रू क्लैम्प. Then flat clamp. The flat clamp supports the work by the clamp face. जो उनका face होता है, with the help of face we can support the workpiece which is pressed against the work by tightening a nut. यानी कि flat clamp में हम उसका जो surface होगा clamp का उसको हम एक nut की help से tight करेंगे. There are several type of flat clamps, that is pivoted clamp, equalizing, latch, double acting and cam clamps. So all these are the types of flat clamps. Now edge clamp, we can see from the figure it is a kind of edge clamp. We can have this edge for the purpose of tightening of the या फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लैंपिंग. ये देखिए यहाँ पे हम नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट यूज़ कर सकते हैं. ये फ्लेक्सिबल नट एंड बोल्ट हम यूज़ कर सकते हैं कि मतलब इसको आगे पीछे कर सकते हैं और इस एज की हेल्प से वी कैन क्लैंप द वर्क पीस. देन दीज आर द टॉगल क्लैंप्स. टॉगल क्लैंप्स मीन्स कि मतलब कि वी कैन ऑन और ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लैंप, यानी कि जस्ट बाय पुशिंग और पुलिंग दिस लीवर. Here this is the lever, but just by pushing or pulling this lever we can have मतलब कि off or on these type of clamps. Then this is the pivoted clamp. The work can be gripped quickly by tightening the screw which actuates a pivoted clamp on the face of the workpiece. The spring illustrated in figure guides the clamp of this same type in a horizontal position when the work is अनलोडेड. ये देखिए ये एक स्पेशल टाइप का क्लैंप है, पिवटेड क्लैंप है. यहाँ पे ये हम देख सकते हैं. तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से ये पिवट किया हुआ है और ये जो पार्ट है दिस इज़ द फ्लेक्सिबल पार्ट, और इस नट्स से जो है हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं. यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है तो स्प्रिंग की हेल्प से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं. स्प्रिंग के प्रेशर के अगेंस्ट ये काम करेगा. Now solid clamp, again it is the same kind of clamps. Solid clamp यहाँ देखिए ये नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट है, ये पिवटेड पिन है और ये जो सरफेस है इसका दिस सरफेस इज होल्डिंग द वर्क पीस. अगेन इट इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम द फिगर. देन कैम क्लैंप विद हिल. ये देखिए इट इज़ ए टाइप ऑफ क्लैंप विद हिल. इसमें वी कैन यूज़ ए हिल पिन. इट इज़ ए पिन, स्पेशल पिन दैट इज़ नोन एज हिल पिन. तो ये एक पिवटेड पॉइंट होगा और अलोंग दिस पॉइंट वी कैन हैव द होल्डिंग ऑफ द सरफेस. यहाँ पे हम जो है ये एक स्प्रिंग लगा हुआ, ये नट होगा तो एडजस्टेबल होगा ये, और इस यहाँ पे पिविट होगा और इसके अकॉर्डिंगली जो है ना हम इसको होल्ड कर सकते हैं. देन स्विंग क्लैम्प. स्विंग क्लैम्प देखिए इट इज़ ईजिएस्ट टाइप ऑफ क्लैम्प. जस्ट बाय स्विंगिंग वी कैन क्लैम्प एंड अनक्लैम्प. ये क्लैम्प होगा, ये नीचे हम फिक्स करेंगे इसको और जस्ट इसको रोटेट करके जो है ना एलन की से हम इसको रोटेट करके वी कैन clamp and unclamp. Then equalizing clamp. Again same, the equalizing clamp is employed to exert equal pressure on the two faces of the work by the two legs of the clamp pressed against the work by the same amount, exerting equal pressure on its two clamping surfaces. इसमें देखिए ये equalizing clamp होगा यहाँ पे, तो